अच्छा जी, क्या हमने किया था फर्स्ट लेक्चर? जो आवाज आ रही है बाकियों को, मैं भी चल रहा है, देखें बाकियों को आवाज आ रही सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। इट्स नॉट क्लियर, किसी के पास आपका मंफी है? अभी क्लियर नहीं है। अब आवाज आ रही है बाकियों को? जी सर अब क्लियर है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्राइम। लास्ट टाइम हमने डिवीजन स्टार्ट एंड कर लिया था, ठीक है। सो आप लोग मुझे जरा डेफिनेशन बताएं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी? एनीवन हु हैज मेमोराइज्ड इट? That discuss about a crime. Yeah. About a crime and prevention of a crime. And Prevention of a crime. so according to Sutherland, what are the three main things in criminology? The definition. No, according to Sutherland ने कुछ definition दी थी, मैं वो पूछ रहा हूँ। I'm not just टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीन चीजें थी, ये आपका जो है वो अलग टॉपिक पे क्वेश्चन भी आ जाता है। Okay, so we will start with the crime. It is when conduct in violation of the criminal laws of the jurisdiction that has the power to make such. On no books. CSS 2020 back 20 effort. Telephone, the bear. Car sign C, from week C, CSS with K. Oh, books, with F.
ये आप लोग जरा एक नज़र देख लें। इस तरह हमने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपने एग्जाम से पहले नोट्स बनाने हैं ना, उसका पैटर्न क्या होगा। एक मुझे दिखाइएगा जरा, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो पेज है ना, एक पेज तकरीबन 2 पेजेस हैं जिसमें पूरी थ्योरीज हमने कवर कर लेनी है, ठीक है। इसमें आई हैव मेड 4 sections and I have discussed all the major theories here, and I have also written their authors who has proposed these theories and their books name as well. और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह छोटी छोटी चीजें नजर आ रही है ना, ठीक है। अब इस तरह इसको कहते हैं बुलेट नोट्स। अब ये आपने बनाने हैं, हर सेक्शन के अलग होंगे। लाइक यू शुड हैव एटलीस्ट मैक्सिमम 10 पेजेस, 10 to 12 पेजेस, जिसमें आपके पूरे क्रिमिनोलॉजी के नोट्स होंगे, ठीक है। ये आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। और इसके अलावा आई हैव सम शॉर्ट नोट्स एज वेल ऑन क्रिमिनोलॉजी, जो एक सेक्शन का हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग, जो नोट्स असल होंगे वो आप लोगों ने खुद बनाने हैं। लाइक यू नीड टू इनकॉर्पोरेट थिंग्स दैट यू लर्न, लाइक एवरीवन अंडरस्टैंड इट्स ओन थिंग। मतलब हर एक के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अपने होते हैं, जो कीवर्ड्स हैं जिस तरह हमने याद रखने हैं। सो यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, बट यू नीड टू नो हाउ टू मेक द शॉर्ट नोट्स। अच्छा, नजर आ रहा है सारा लाइन की वजह से। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। आपके साथ शेयर करूंगा, पिछली शेयर हो गई थी लेक्चर 1 की, ठीक है। अब वो आप ओके, सो आपको ये स्लाइड्स पढ़ के आई थिंक किसी बुक की जरूरत नहीं होगी, आप पढ़ सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट फर्स्ट यू नीड टू मेक द नोट्स एंड देन यू कैन रीड फ्रॉम अदर बुक्स. So first of all, you need to know what is the definition of crime. It is the official definition, like it is a human conduct in violation of the criminal laws of the jurisdiction. What is the jurisdiction? Jurisdiction, for example, if we are living in a country like Pakistan, so there are Pakistan Penal Code, Pakistan Criminal Code, Criminal Procedure Code. So if we violate that law, it means that we are committing a crime. That has the power. So jurisdiction, it means that Pakistan, the state of Pakistan, it has the power to make such laws, and for which there is some form of authorization sanction. I mean, there is a force that can empower these laws and regulations, and that can hold the criminals who commit these crimes. Okay. So international act, or so it should be an international act, and then you can of the behavior that represents a danger to society, and it is designated as such in the penal code. Okay, so it is important that it should be designated in the penal code, and it is a danger to the society as a whole. So that is why we need to constantly update our criminal code, procedure code. And you see that there are a lot of amendments. If anyone has the law background, so you know that there are a lot of amendments in the procedure, in the criminal code, in the sections. We do not outrightly change the laws, but we only update it. Okay. So there are 3 criminal perspectives or criminal behavior which we can describe. That is one: individual, situational, and social structure. What we have in individual, so it explains crime in terms of choices or characteristics of the individual person. For example, if an individual person commits any crime or makes choice that will result in the violation of a law, so that will become an individual perspective. ठीक है, criminal behavior में आप देखते हैं कि एक individual perspective है। जब वो individual एक किसी crime को कोई law break करता है, so that perspective is called individual perspective. Then there is situational perspective, and this situational perspective, according to situational crime prevention, crime is the result of an interaction between disposition and situation. For example, you see that मतलब आप देखते हैं बाहर जाके कोई क्रिमिनल देखता है कि जो कार है उसकी वो ओपन है, ठीक है, अनलॉक है, ठीक है, and the key is inside the car. So what he can do, he has the situation, he has the opportunity, so he will just grab the opportunity and he will leave, he will take the car. So this is called situational perspective. And then there are social structures. So they look at the for example,
सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। स्टडी सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। सर माजिद, आर यू देयर? सर माजिद? Sir, please resolve this issue. Sir Majid, please resolve the issue of connection.
So it's three things we have in nature of crime. Crime is normal, crime is inevitable, and crime is useful. And give me an example that how you say that crime is useful and crime in the society. Okay. How it leads to development? Yes, you are right in one aspect that it leads to the advancement in the tools of crime prevention and controlling crime. But what else? Sir? Sir? This is what I want to ask, that I want to tell that this is a Rosa Park incident. So तब क्या था, like you have US history as well. So Rosa Park incident हुआ था I think 1960s में maybe. So उसमें क्या था कि at that time there were black laws as well in the US. Because उसमें क्या था, it was crime if you sit on the bus and if there is a white person, so you need to give the space to the white people. ठीक है. तो उसने क्या किया था, she went against the law. That was crime. But then it led to the जो उसमें जो आए थे सिविल लॉज आए थे, ठीक है, जो 1963 में आए थे, ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रेसिडेंट भी उसका जो है वो मारा गया था. क्या नाम था उसका, नहीं पता. 1963 कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी. ठीक है. सो ये उसका था. सो दैट इज हाउ वी कैन से क्राइम इज यूज्ड. Sir? And if they ask us to write crime and nature of crime, so you will write that there is. सर हमें कुछ भी समझ नहीं आ. What is the legalistic? Sir, excuse me. Oh, that is according to the given constitution. Okay, your civil procedure code, your criminal procedure code, your Pakistan penal code. So uske against that will come as your legalistic definition of your crime. So there is a Sir? without defense or excuse. Next we talk. So the shortcomings are some activities are not crime even though they are immoral. For example, torturing animals, creating poor working conditions, lying, littering. Okay, so they are not covered under the legalistic definition. For example, if you cut a tree, so that is not a crime according to the Pakistan Penal Code or according to the Civil Procedure Code, but that is an immoral activity. Okay? So that doesn't come under the perspective of legalistic definition. And powerful individuals are able to influence the making of laws and may escape the label as being a criminal. For example, you talk about the sugar cartels in Pakistan. Okay, they are controlling the parliament and they will not let any act pass that will go against their interest in the country. So we call them that is there is a definition, there is a hole in the legalistic definition. Okay, so you can just write the shortcomings, this heading under the legalistic. So what is a political definition? For example, the politician, if there is a tendency in any country that the politicians are terming environmental crimes as crime, so we call them as political definition. क्योंकि वहाँ पे जो political जो उसकी polity थी, जो political persons थे, जो politicians थे, उन्होंने कहा कि ये चीज खराब है, ठीक है. And what is politics? Politics is actually politics depicts the aspirations of the common people. Okay? So that is the aspiration of the common people. And if they say that this is a crime, so we will set a norm, a value in a society. और अगर हम उसके against जाएंगे, that will be the crime according to the political perspective. Okay? Definition of crime. So what is the sociological definition? So crime encompasses any harmful acts, including violation of fundamental prerequisites for public medical service, challenging security from predatory individuals or repressive and imperialistic elites. So ये पूरी definition अगर ठीक है, अब इस ताकि जब आप कोई assignment बनाएं, so you need to make sure that you follow the pattern. ठीक है, not only in this subject but in any subject. So then this is a violation of human rights. And when a man who steals a partridge sum can be called a criminal, while agents of the state can legally reward men who destroy food, so that price level can be maintained. But these are not called the criminals. ठीक है? For example, जो hoarders हैं,
शुगर माफिया आप कर लें, लाइक रिसेंटली वी सी माइक में ये अब चेक कर लें. Okay, so is it clear the sociological definition of crime? Then we have psychological definition. And then according to this definition, any behavior which restricts or stands in the way of an individual developing to his her fullest potential. With the adoption of this view of the crime, the scope of criminology can be expanded. ठीक है, so anything can come under crime. ठीक है, जो भी किसी चीज की जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को जो हैम्पर करे, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट को जो हैम्पर करे, we call that as a crime. For example, give me an example of this thing, like how the scope of criminology can be expanded if we incorporate this definition. Anyone? For example, if a child is playing, ठीक है, and if he is playing with an adult, and the adult is not giving him attention, he is continuously using his mobile phone in front of him. So what will happen? This will in turn hamper the mental growth, the psychological development of the child. So he may in future may become invert. ठीक है? He will not be like fully participate in anything to its maximum limit. So we call that as a crime according to the psychological perspective. ये बंद करें, बंद है, बाहर से शोर आ रहा है. अच्छा ठीक है, आगे. जैसे कि हमारा रिजल्ट एरिया है, वहाँ पे साइकोलॉजिकली ही जो बच्चा पैदा होता है, अब एक क्राइम हो रहा है, साइकोलॉजिकल क्रिमिनल हो. नहीं, वो तो उसके सराउंडिंग होती है ना. फॉर एग्जांपल ये भी आप ठीक कह रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल में आ जाता है, लेकिन आप बेसिक, बिल्कुल बेसिक में रहें कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसका एनवायरनमेंट में आप उसको अटेंशन पे ना करें, ठीक है, जो रिक्विजिट उसके जो कंडीशंस हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइंग द रिक्विजिट कंडीशंस फॉर द हेल्थी मेंटल ग्रोथ, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ क्राइम अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल definition. Two natures of crime, mala in se and mala prohibitia. So what is mala in se? It means that wrong within themselves. For example, robbery, injury and drug use, that is wrong in itself. Okay? But mala prohibitia, what is that? It means that wrong because we say they are. For example, drinking, smoking, okay, or restrictions as well. But अगर यहाँ कहीं पे ये illegal नहीं है, for example in the European countries drinking is not illegal, but we say that is mala prohibitia because they are wrong because we say so. ठीक है, the community says so, this is wrong, so that is wrong. But the crime जो restriction होगी, मतलब जो criminal justice system जिस पे apply होगा, वो किस पे होगा? जो legalistic definition होगी. ठीक है, जो legalistic crime होगा उस पे होगा, और वो होता है mala in se. Between crime and sin, and give me an example as well. Like this is a common perspective, common knowledge that what is a crime and what is a sin. Yes, one by one. Yes, you tell me. If it goes against the religious perspective, okay, the religious statutes, the religious laws, and if it goes against the state laws, it will become a crime. If it goes against the religion, it will become a sin. So give me an example that is a sin as well as a crime in Pakistan. Alcohol drinking, another example. Robbery, murder. Okay, so that is a false accusation, a felony. ये आपको prove करना पड़ेगा, ठीक है, in crime that will be difficult because we will see that what are the components required to prove it as a crime. ठीक है, वो examples भी देखेंगे. But we call them as a sin, but we may not call it as a crime. So you may know this जो भी कहते हैं इसको between crime and sin, and this can be the example which comes under both. So I think you have studied or you know the term of Venn diagrams. So this is just like that. Okay, between crime and voice. Voice are often included in the category of crimes, but many of them sometimes are not regarded as crimes. So there is a lot of difference. What is the difference? The crime cause harm to others, but voice
cause harm to oneself. ठीक है. For example, if drinking sometimes is a crime. In Pakistan, it is a crime, and it is also a vice. Why? Because it causes harm to oneself. ठीक है. Suicide, harm and vice. Give me an example that is a vice but not a crime. आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, नहीं समझ आ रही है तो बताएं ना कौन सी एग्जांपल है. That is a vice but not a crime. कोई नहीं समझ आ रही. Smoking is a crime. Do you think smoking is crime in Pakistan? It is not a crime. Legally it is not a crime. But आप देख, अगर क्राइम हो तो क्यों ये सेल हो. ठीक है. Why cigarettes are easily available in the market. ठीक है. In everywhere you can see. So it is not a crime but it is a vice. ठीक है. Because it harms the person जो उसको यूज करता है. वो अपने साथ कह रहा है ना. Yes, definitely. So को प्रूफ करना लाजमी है. लाइक जो आप जुरिस्डिक्शन में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, सो लॉयर क्या करते हैं, जो टेक्निकल चीजें उनकी ये है कि दे नीड टू प्रूव दैट दिस इज अ क्राइम हैज बीन कमिटेड. सो व्हाई, हाउ क्राइम हैज बीन कमिटेड, देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू प्रूव. Two things: a physical action that is called actus reus and a mental state that is called mens rea. ठीक है. अब इसमें आपके पास दोनों चीजें होंगी तो ये क्राइम होगा, and then it will be a guilty and then punishment will be awarded to him. So then we further this constituents of crime. Actus reus, what is that? It is acts or omission that comprise of physical elements of a crime as required by statute. In other words, the actus reus in criminal law consists of all elements of a crime other than the state of mind of the defendant. ठीक है. अब जो भी आपके पास फिजिकल जो एक्ट्स आते हैं क्राइम में, वो क्या होते हैं एक्टस रियूस में. अब जो उसके पीछे जो उसका माइंडसेट है, ठीक है, वो आती है मेंस रेया. अब लेट्स से एक बंदा जो है वो मेंटली अनफिट है, मेंटली इनस्टेबल है, सो वो उसके ऊपर क्राइम की वो जुरिस्डिक्शन नहीं अप्लाई हो सकती. ठीक है. जो उसकी हदूद मुकर्रर की गई है, जो उस पर पेनल्टी मुकर्रर की गई है, वी कैन नॉट अप्लाई दैट थिंग ऑन दैट पर्सन. व्हाई? बिकॉज मेंस रेया इज नॉट एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. इसी तरह आप देखते हैं कि जो कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जो भी पीछे केस, इस तरह की आप केस स्टडी लिख सकते हैं ना. इसमें लिख लें एग्जांपल कि जो अभी जो उन्होंने एक्विट किए थे या जो उनको कैपिटल पनिशमेंट डिले की थी ऐसे लोगों की जो मेंटली अनस्टेबल थे. ठीक है. ये काफी पीछे न्यूज थी न्यूज़पेपर में. सो दैट कम्स अंडर. ये जो चीज है ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ मेंस रेया. ठीक है. मेंस रेया एस्टैब्लिश नहीं हुई कि उसके जो मेंटल, दे आर नॉट मेंटली फिट टू कमिट द क्राइम. सो इट मींस दैट आता है इसके अंदर के जो एक गिल्टी माइंड के साथ आपने एक काम कर दिया और उसमें हर्ट आ गया अगले बंदे को. यस, वो भी अभी देखेंगे हम. कंप्लीट एक क्राइम का सिनेरियो, उसके 5 कंपोनेंट्स आएंगे, वो भी देखते हैं. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. प्रैक्टिस किया कि उसके गिल्टी माइंड तो था और उसने जो काम किया उसकी वजह से. एग्जैक्टली, डेफिनेटली. Yes, so you are right. So this is what we mean by actus reus and mens reus. So these are the two main things required if we need to establish that there is a crime committed. But there are other things as well. देखना इसके बाद एग्जांपल्स भी हैं सारों से, आपने मैंने आपसे पूछनी भी हैं. So crime is defined simply as behavior that is contrary to the law and for which law prescribes some punishment. So these are the ingredients of crime. कि crime के ingredients क्या होंगी? Criminal act requirement के criminal act हो रहा है. ठीक है. The voluntary requirement that उसको कोर्स नहीं किया गया, जिसने किसी ने क्रिमिनल एक्ट कमिट किया है, he is not being coerced. No ex post facto laws. अब no ex post facto laws का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम काइट फ्लाइंग की बात करें कि आज मैंने काइट फ्लाइंग की है एंड देयर इज अ लॉ दैट इज कमिंग इन फोर्स टुमारो. ठीक है. जो जिस पर बैन लग रहा है काइट फ्लाइंग पे, तो मेरे पे जो है वो उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव भी अप्लाई होते हैं आपके जुरिस्डिक्शन में. जो आपने देखा होगा जो FIA की कुछ जब दोबारा बनी थी तो जो उससे पहले जो धारा था उसके जो भी सारा लॉज थे वो रेट्रोस्पेक्टिव में आ गए थे. नैब के भी रेट्रोस्पेक्टिव में आए हुए हैं. द हार्म रिक्वायरमेंट. ठीक है. कि किसी को हार्म हो रहा है. And then the causation requirement. If I hire someone to commit a murder, my hiring is the action meeting the causation requirement. ठीक है. The guilty mind or mens rea requirement. अब इसमें बताएं टाइम है. Why? Which ex post facto law आया है. ठीक है. Will she be prosecuted? How and why?
उसकी मेंस रिया नहीं थी ना, मेंस रिया थी, मेंस रिया भी तो नहीं है ना। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है मेंस रिया? उसकी जो मतलब जो उसका मेंटल माइंडसेट होना चाहिए ना कि उसने हार्म करना है किसी को, तो फिर ही होगा। अगर उसका नहीं है, एक्सीडेंट किसी से हो गया, तो आप उसको नहीं कर सकते प्रोसिक्यूट। हाँ, लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर आप फाइन कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मर्डर के चार्ज में नहीं कर सकते ना। नहीं, वो मेंस रिया पे एस्टैब्लिश करें ना फिर उसके लिए। अब उसकी यहाँ पे ये सिंपल केस ले रहे हैं ना, उसकी मेंस रिया नहीं है, इंटेंशन नहीं है। जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्या करते हैं, लॉयर्स ये करते हैं कि सर इसकी मेंस रिया नहीं थी, ये तो वैसे जा रहा था, अचानक से वो आ गया, ठीक है। लेकिन आपने क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमने ये चीजें एस्टैब्लिश करनी है। हाँ, फिजिकल आपके हार्म चीजें हैं ना, मतलब आप टेक्निकल चीजों में नहीं जा रहे, बट इफ यू गो टू द टेक्निकल थिंग इट इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। अनदर एग्जांपल 324 है, 302, 301, ये सारे वो हर्ट की भी टाइप्स हैं। अगर आपकी जो आप कह रहे हैं कि मर्डर की भी टाइप्स हैं, इंटेंशनल मर्डर है, डेफिनेटली मर्डर है, ये अब सारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सारा कुछ लिखा हुआ है, जितने सेक्शन, इतने ज्यादा सेक्शन उसमें, सारा कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल, व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल, आप बताएं क्या नाम है आपका सेंटर में जो बैठे हैं? सजाद जी, सजाद बताएं व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इज इट अ क्राइम और नॉट? किसको आपने प्रोसिक्यूट करना है, दैट इज द क्वेश्चन। किसको करेंगे? वन बाय वन भाई, वन बाय वन, इतना रश नहीं डालना, बताएं जी। तीनों ही होंगे? अच्छा, जो जिसको मार दिया वो भी होगा प्रोसिक्यूट? अकॉर्डिंग टू पीपीसी मुर्तजा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में रखा जाएगा। अच्छा, शाजिया चूंकि क्रिमिनल एक्ट कर रही है, हाँ, तो इसलिए उसको जो है वो 302 में रखा जाएगा, क्योंकि उसने जो है उसकी मेंस रिया थी, उसको बताना चाहिए था, लेकिन उसने जो है वो नहीं इन्फॉर्म किया, ठीक है। सो हार्म भी हो गया, पोजीशन भी हो गई, सो देयर विल बी प्रोसिक्यूशन एज वेल। सोबिया भी और मुर्तजा भी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें वन बाय वन, मुर्तजा है, मुर्तजा ने क्रीम, ठीक है। सोबिया नो अबाउट शाजिया प्लान का, मुर्तजा और शाजिया तो हो गए, ठीक है, दोनों ने हेल्प की है ना। अब उसके बाद सोबिया, जो आप देखते हैं ना, जो क्राइम में जो मददगार होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है प्रोसिक्यूट होगी, लेकिन वो उसका क्योंकि इसको पता है कि वो करना चाह रहा है, इसने सिर्फ बताया, नहीं करने ही नहीं किया, तो इसका सिर्फ इतना सा इसमें हमारा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगता। हमने इसे जस्ट ये इसमें लिखा था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होती विटनेस के तौर पे, लेकिन इसमें कोई ऑफेंस लगता नहीं है। चलें ठीक है, इस पे नहीं लगेगा, लेकिन मुर्तजा और शाजिया पे तो लगेगा ना। सोबिया ने तो नहीं मारा ना उसे, सोबिया को पता था, ठीक है, बताती तो बच जाता है, ये तो उसके अपने है ना, ये एग्जैक्टली ये लास्ट एग्जांपल भी बता दें, ये एग्जांपल भी बता दें। समीना ने तो हायर कर लिया ना, पोजीशन हो गई उसकी, ठीक है, लेकिन उसकी मेंस रिया तो नहीं है ना, मारने की नहीं थी, वो तो उसको मारने आया था, ठीक है। आपका लो बैकग्राउंड है, बस ठीक है, फिर तो आप जो है क्राइम, अब जो स्लाइड्स बनाई हुई हैं मैंने, जाते रहेंगे, आपको बता पार्टिकुलर क्राइम फर्दर पढ़ना है तो उसमें सीरियल की बुक में से पढ़ सकते हैं, उसमें उसने एग्जांपल्स दिए हैं। वो मेरे से ले सकता है लेक्चर के बाद, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी चाहिए,
वो चीजें की बुक है एमसीक्यूज की क्रिमिनोलॉजी पे, वो आप ले लीजिएगा क्योंकि 20 मार्क्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, सो यू नीड टू टेक दैट बुक। और उसमें आप सेक्शन वाइज जो हम कह रहे हैं, हाँ वो एमसीक्यूज होते हैं उसके, वो आपने कर लेने हैं। आप लोगों को criminal law. So there are two types of criminal law: substantive criminal, it defines जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीजर, तो आपका ये बताएगा ना कि प्रोसीजर किस तरह आपने पकड़ना, किस तरह एफआईआर आपने किस तरह लिखनी है। अब सीआरपीसी सीपीसी क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड। जिसमें प्रोसीजर आ जाता है ना, वो क्या है? वो प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ है कि आपने देखे, हाँ आपने उसको अगर एफआईआर काटनी है तो किस तरह एफआईआर काटनी है, ठीक है, कौन सा सेक्शन आप अप्लाई करेंगे, कितने दिन तक आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, आपने कब उसको जो जज के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर सीआरपीसी और सीपीसी। लेकिन अब पाकिस्तान पिनल कोड है, पाकिस्तान पिनल कोड क्या बताता है? वो बताता है कि जी ये जो है, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मर्डर बता देगा, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन जो आपने लगाने हैं वो कहाँ पे आएंगे? वो पाकिस्तान पिनल कोड में आएंगे। वो आता है आपका सबटेंटिव। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कुछ नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान पिनल कोड में जो आपके मेन जो क्राइम्स आ रहे होते हैं वो उसमें ही आते हैं। वी हैव इन क्रिमिनल लॉ एंड देन द डिफेंडेंट, जो एक्यूज अपना डिफेंडेंट लेके आता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी, उसमें देख लेंगे। Law versus criminal law. So what is the difference between civil law and criminal law? क्रिमिनल लॉ जो होता है वो मेन वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। प्रोसिक्यूट कौन करती है? स्टेट करती है। इफ यू हैव कमिटेड अ मर्डर, इफ एनीवन हैज कमिटेड अ मर्डर, सो दैट विल कम अंडर द क्रिमिनल लॉ। लेकिन मेरा किसी से झगड़ा हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने उसके कब्जे में कर लिया, सो दैट विल कम अंडर द सिविल लॉ, ठीक है। वो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान है, जिसमें पर्सन टू पर्सन आपके पास रिलेशन आ रहा है ना, ठीक है, जिसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, बेसिक राइट्स इन्वॉल्व नहीं है पर्सन के, ठीक है। बेसिक उसमें आपने जो है वो, अब वो इतना नहीं आएगा। पब्लिक ऑफेंस है, पनिशमेंट है, स्टेट ब्रिंग्स द एक्शन है, एंड देन लिमिटेड स्टेट अपील्स है, फाइन गोज टू द स्टेट एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, रीजनेबल मैन टेस्ट एंड हाई लेवल ऑफ इंटेंट इसमें होती है। एंड सिविल लॉ में क्या होता है? प्राइवेट रॉन्ग डूइंग है, मॉनेटरी डैमेजेस, इंडिविजुअल ब्रिंग्स द एक्शन, बोथ पार्टीज कैन अपील, इंडिविजुअल कंपनसेशन मिलेगा किसको? ठीक है, जिसने केस जीतेगा उसको मिल जाएगा कंपनसेट। तो हमारे एक्ट पे लिखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो सिविल लॉ की जो एक कंप्लीशन टाइम है, कितनी देर में उसका रिजल्ट आता है, ठीक है। इसी तरह क्रिमिनल लॉ का कितना आता है? नहीं, वो कोशिश तो की है, लेकिन जो एक हार्डकोर फैक्ट्स हैं, मतलब जो आपने स्टडी करना है कि पिछले सालों में, उसमें आपके दादा करता है केस और पोते की बारी, वो भी चलता रहता है ना, ठीक है। तो इसमें वही है जो पावरफुल है, ठीक है, ही इज यूजिंग ऑल द अथॉरिटी, ठीक है, इसमें यही है। अब substantive due procedure, there are limits to what conduct the law may seek to prohibit, forbids passage of laws that infringe on the right of individuals, एंड ओवरब्रेथ डॉक्ट्राइन। ओवरब्रेथ डॉक्ट्राइन क्या होता है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई डिक्टेटर आ जाता है, जो भी उसमें लगाएगा, इट कैन एब्रोगेट द लॉ एज वेल, क्योंकि उसके पास पावर है, ठीक है, ही हैज अ स्टेट सैंक्शन पावर, सो ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही वांट्स। ये आप खुद पा लीजिएगा। अब ये जो हमने मेंस-रिया और एक्टस-रियास की थी, अब उसमें आपके पास दो चीजें थी, हमने एक्टस-रियास देखा और मेंस-रिया देखा। अब इसके अलावा आपके पास कंकरेंस होनी चाहिए, लाइक देयर शुड बी अ कंकरेंस ऑफ बोथ एट द सेम टाइम, मेंस-रिया एंड एक्टस-रिया, ठीक है। एंड देन देयर इज अ कॉजेशन एंड देयर इज अ हार्म, ठीक है। कॉजेशन क्या है कि आपने कमिट कर लिया उसको, ठीक है, कॉज हो गया उसका, एंड देन देयर इज अ हार्म टू द विक्टिम। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स। ये हम सिस्टम ऑफ सर पाकिस्तान, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, स्क्रीन भी रुक रुक के चल रही है और आपकी आवाज भी नहीं सही आ रही। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन डिटेल।
theoretical perspective. So there are different. सर आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? सर डेवलपमेंट एक्सक्यूज मी क्लासिकल सर, एज में क्या कहते हैं आजकल जो है 20th सेंचुरी के स्टार्ट में न्यू क्लासिकल एज आ गई, उससे पहले पॉजिटिविस्ट। सो व्हाट आर दीज थॉट्स, ठीक है, व्हाट आर दीज अप्रोचेस। एक्सक्यूज अब मी ये सर, आपको एक क्वेश्चन आया था नेचर वर्सेस नर्चर। सो व्हाट इज नेचर? नेचर इज सोशल रिस्पांसिबिलिटी पर्सपेक्टिव दैट शायद क्राइम सको इज एन हमारी आवाज इंडिविजुअल नहीं जा रही। रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, जिसमें आपके पास कौन सी आ जाएगी, थ्योरीज आ जाएंगी, बायोलॉजिकल थ्योरीज आ जाएंगी, साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी आ जाएंगी। कि जी उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी तो वो नर्चर आ जाती है, या उसको खुद कुछ फैमिली में या इस तरह की चीजें, मेरे ख्याल से वो नर्चर में आनी चाहिए वो, क्योंकि वो एनवायरमेंट उसको ग्रूम कर रहे हैं ना, ठीक है। जो बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं वो नेचर में आएंगी। इसके अलावा जो क्लासिकल थ्योरीज हैं, ठीक है, कहता है कि इंसान अपनी खुद विल से करता है, क्राइम कमिट करता है, तो वो नेचर में आ जाती हैं। अब नेचर वर्सेस नर्चर, अब इसकी देख लें। द डिमोनिक इरा में क्या थे कि आपके पास एनलाइटनमेंट नहीं थी। एनलाइटनमेंट जब आई है आपके पास यूरोप में, वो आई है 17th 18th मतलब 15 से स्टार्ट हो जाती है, रिफॉर्मेशन आती है, एनलाइटनमेंट आती है, ठीक है, उसमें जो आर्ट्स का एरा आता है, ठीक है, ये चीजें आती हैं, ये 18th तक जाती हैं। उससे पहले वाले जो एरा उसमें रोमन आ जाते हैं, ठीक है, उससे पहले जो है डिमोनिक, उस सारे एरा को कहते हैं डिमोनिक एरा, जिसमें रिलीजन का रोल था। रिलीजन आपका कहता है कि जी, अब इसमें देखते हैं, ये इसमें बड़े मजे की चीज है कि अर्ली एक्सप्लेनेशन ऑफ इवल क्या है कि जी डिमोनिक पोजेशन है, ठीक है, उसके अंदर शैतान आ गया, उसकी वजह से कर रहा है, उसको मार दो, ठीक है। समटाइम्स अब उसको ये जो आपको डायग्राम मैंने पेस्ट की गई है, दैट इज आल्सो दैट इज द क्योर ऑफ अ क्राइम कि जी इसके दिमाग में कुछ आ गया, सो इवल इसके अंदर स्पिरिट है, वी नीड टू रिलीज दैट स्पिरिट। तो यहाँ पे दे आर होल ड्रिलिंग अ होल इन हिज ब्रेन, ठीक है, ये सब कुछ ये सारा डिमोनिक एरा में होता था। नाउ इट इज लाइक अब हमारे लिए तो बड़ा अजीब सी चीज है, बट इट हैपेंड। फाइन पनिशमेंट हमारा जितना इंडियन लॉ है, मनु लॉ मनु और ये और जितनी ब्रिगवेद और आयुर्वेद और ये सारी पे भी, ये सारी इसी बात पे है। वो लॉ बिल्डा बनाया वो और ये बनाया हुआ है, ये जो आपकी डिवाइन पनिशमेंट है सारी, जो आदमी से लॉ हुआ नहीं चला उसने करा, दैट इज डेफिनेटली इवन के पुलिस की जो बैक साइड पे जो सारे कानून जो सारे लॉ बने हैं वो भी उसी पे डिपेंड करके बनाया गया। वो अगर आपने इसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो लॉ ऑफ नेचर जो आता है ना, लॉ ऑफ नेचर इसी वजह से इवॉल्व होता है, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ नेचर इन इटसेल्फ नहीं है ना, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है कि व्हाट इज लॉ ऑफ नेचर, नेचर में अपना तो नहीं है लॉ, वो तो लोगों ने बनाया था, ठीक है। अब यही चीजों को लॉ ऑफ नेचर कह देते हैं, फिर उसके बाद लिबर्टीज और ह्यूमन सारा कुछ आ जाता है। तो इट इज देयर इज टू मच डिबेट ऑन इट, वी डोंट नीड टू गो इन दैट डिबेट, ठीक है। सो इट इज अगेन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, सो वी माइट नीड टू यूज अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो इसका जो टेक्निक का नाम था ना, वो ये था ट्रेफिनेशन, ठीक है, इसके स्पेलिंग याद कर लें, अच्छा होगा लिखने के लिए। What are the early sources? We have Code of Hammurabi. Code of Hammurabi was very famous code, ठीक है। क्यों? क्योंकि at that time जो था वो लोगों में ये सोचा नहीं जाता था कि एस्टैब्लिश होंगे कोर्ट्स, ठीक है, लिखा जाएगा कि कौन क्राइम नहीं है और उनकी पनिशमेंट क्या है। स्पेसिफिकली इस कोड ऑफ हम्मुराबी पे जो चिल्ड्रन थे वो उनको ज्यादा टारगेट किया जाता था, उनके लिए बहुत सीवियर पनिशमेंट होती थी। सो यू जस्ट नीड टू नो दैट देयर इज अ कोड ऑफ हम्मुराबी एंड दैट इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ योर क्रिमिनल लॉ। एंड देन देयर इज अर्ली रोमन लॉ, ठीक है। रोमन्स जो थे, व्हाई देयर इज लाइक रोमन्स आर फेमस इन द हिस्ट्री, क्यों? बिकॉज दे हैव डन some very good things in literature, in art, in culture and in law as well, ठीक है। उनमें जो आप प्लाटो देखते हैं, अरिस्टोटल देखते हैं, ठीक है, वो सारे क्या थे, they have given theories that now right now understandable, but at that time they are not understandable, like they were just out of the box, ठीक है। So that is why they paved way for the development of the human civilization that we are living in right now. उसके बाद मैग्ना कार्टा थी जो 1248 में आई थी। अब उसमें क्या हुआ था, we will just explore the first known written body of law to survive, and it is created in 1700 BC, like before Christ, in Babylon. Where is Babylon, by the way? Baghdad. Yes, it is in Syria and Iraq. ये जो पूरी civilization थी ये Mesopotamian civilization थी, और ये जो हम्मुराबी था ये उसी का जो था वो आया था। It emphasized retribution and attempted to limit cruelty of punishment, ठीक है। But we have early Roman law जिसमें आप derived from the 12 tables,
regulated family, religious, economic life based on generally accepted common and fair practices. You don't need to go in detail, but you need to know that there are early Roman laws. In early Roman laws, we have Justinian Code and there is 12 table something like convention उनकी होती थी जिसमें वो उनके जो थे ना जो एलीट लोग होते थे या जो उनके आप कह सकते हैं कांग्रेसमैन कहते थे जो सिलेक्टेबल्स होते थे वो बैठते थे और वो डिसाइड करते थे इसमें. So it is traditional law that is being evolved with the passage of time. ठीक है. And there is Magna Carta. So what is Magna Carta? So it bound the king by law to respect traditional land owning rights of barons. यानी मैग्ना कार्टा इस वजह से मैग्ना आपको पता है मैग्ना कार्टा कभी पास नहीं हुआ था ये पता है आपको मैग्ना कार्टा जो उन्होंने लिखा था ये पास नहीं हुआ ठीक है मतलब इस पे इन्फोर्स नहीं हुआ था क्यों उस टाइम पे बन गया था अभी हमें लगता है कि बहुत फेमस है लेकिन अगर आप हिस्ट्री में पढ़ें तो वो इन्फोर्स नहीं हुआ था ठीक है 2 साल बाद ही वो जो था वो बिशप जिसने बनाया था वो फारिग हो गया था दोबारा आ गया था तो बड़ी मजे की हिस्ट्री है लेकिन उसकी वजह से उसमें क्या था कुछ ऐसे लिटरेचर होते हैं फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी जो रोसो लेके आया था इट वाज अ फेलियर in totality that was a failure but it paved way for the democracy in modern world how इसी तरह मैग्ना कार्टा है it paved way for the development of law in modern era हाँ जी क्यों हंस रहे हैं पहले ये बताएं जाएं भंगड़े डालें जाके पढ़ने की क्या जरूरत है जितना भी हमारा लॉ है ना टोटली डिपेंड करता है उनके मोरल वैल्यूज पे यस ये उनका सोर्स ऑफ लॉ का तौर पे यूज होता है पूरे टाइम अब वहां पे जो इंग्लिश लॉ है दैट इज आल्सो नॉट रिटन यू नो दैट इंग्लिश लॉ इज नॉट अ रिटन वन दैट बेस्ड ऑन कन्वेंशंस ठीक है वो इवॉल्व होता रहता है दैट इज रियली टफ थिंग टू डू उसको पढ़ना बहुत मुश्किल चीज है आपने पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अच्छा बाउंड द किंग बाय guaranteed freedom of church and it also guaranteed respect for customs of towns अब freedom of church इसकी वजह से चर्च जो था ना वो बहुत पावरफुल हो गया था बाद में भी जाके ठीक है जिसमें आप प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक वगैरह की जंग आती है वो यहाँ से उसके जो है वो बीज यहाँ से बोए जाते हैं जो भी है पढ़ने की जरूरत नहीं है then we have enlightenment the age of reason in which we have all the philosophers जो क्लासिकल एज में आएंगे ठीक है कौन से आपके पास फिलोसफर है थॉमस होब सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेवियाथन देन जॉन लॉक क्या था जॉन लॉक ने जो थी वो बताया था कि जो ह्यूमन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इट बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स ऑन सम लॉज ठीक है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट इज सुप्रीम दैट इज सोवरेन एंड पीपल आर नथिंग इन देमसेल्फ सो एक रिटन चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें एग्री करते हैं दीज आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल और उन्होंने ये ओबे करनी होती हैं ठीक है सो वी अगर वो obey नहीं करेंगे so there will be some penalties on them otherwise they are not so humans as a blank state at birth John Locke according to John Locke social contract concept expanded government checks and balances should be there and government required to guarantee certain inalienable rights to their citizens including the right to live possessions ठीक है यानी जॉन लॉक कहता है कि जब ये आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होते हैं कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता ही लर्न फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट एंड देन उसको जो है वो कुछ राइट्स गिव अप कर देता है जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो है उसको न्यू राइट्स मिल जाते हैं इन टर्न ही गेन्स इन टर्न ही गिव्स नथिंग एंड इन रियलिटी ही गिव्स एवरीथिंग ये कोटेशन है आपको याद होनी चाहिए so, मुझे नहीं याद थ्योरीज आ जाएंगी आपके जो फिलोसफर्स हैं these are not important now we start from classical theories so there can be a question on classical versus the positivist theories so what are the classical theories में कुछ भी नहीं है सिंपल एक चीज है कि फ्री विल है एक इंसान की जिसकी वजह से वो वो क्राइम कमिट करता है जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको लाउ करते थे उनको लाव करता रहूं चलो जी कर दिए अच्छा जो क्राइम कमिट होता है दैट इज ऑन द बेस ऑफ फ्री विल ठीक है सो अ पर्सन इफ ही इज गोइंग टू कमिट अ क्राइम ही विल वेट 2 थिंग्स मतलब वो क्या बनाएगा कि इफ देयर इज मोर प्लेजर देन पेन सो ही विल कमिट द क्राइम ठीक है यू कैन मेक अ ड्राइंग एज वेल देयर इज पेन एंड प्लेजर ठीक है सो इफ देयर इज मोर प्लेजर इफ इट इज मोर commit the crime
सो अगर उसको नहीं पता होगा कि पेन उसको बाद में तो मिल सकता है, अगर उसको ये पता लगता है कि देयर इज सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, ही विल नॉट कमिट द क्राइम। सो ये चीज थी, ये क्लासिकल थ्योरिस्ट देखते थे और इसी की वजह से उन्होंने जो है वो कुछ प्रपोज किए। सो वी विल सी दैट अ क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द लेट 17th Enlightenment era. So according to it, according ये आप उसको हेडिंग दे देंगे पोस्टुलेट्स की। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, नजर आ रहा है सारा? ओके। सो ह्यूमंस आर रेशनल बीइंग्स। रेशनल क्या होता है? he can weight his own advantage and disadvantage because he know what is good for him and what is bad for him. Crime is the result of exercise of free will, ठीक है? so free will किसने दी थी? ये जनरल विल फ्री विल आ जाती है, ये किसने दी थी? लोके ने दी थी। मतलब पॉलिटिकल साइंस जिसकी है, किनकी है पॉलिटिकल साइंस? अभी पढ़ी नहीं है? अच्छा, पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जब पढ़ लेंगे तो आपको ये भी मजा आएगा इसका पढ़ के भी। सो पनिशमेंट कैन बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ क्राइम एज इट निगेट्स द प्लेयर टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द कमीशन ऑफ द क्राइम, ठीक है? ये तीन मेन पोस्टुलेट्स हैं। You can expand this. What are the humans? What is the rational thing? What is rationality? Rationality is the ability to make decisions. It's free will, ठीक है? He can weight what is good for him and what is bad for him. He know what is he better knows what is good for him, like what is good for himself, what is good for his family, everything. So this comes under rationality, ठीक है? This is a rational choice. We call it as a rational choice or realistic choice, you can say. Then you can also expand that crime is the result of exercise of free will, and then the punishment can increase the amount of pain inflicted on the criminal so that he can think more on the commission of the crime, either he will commit or not. So it depends on the state, it depends on the society, it depends on the application of the laws at the society.
फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, प्लीज यार बोला करो जब क्लास नहीं हो रही है, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ तो वो बोलने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग नहीं बोलोगे फिर आप लोग का ही मसला होगा, ये इशू सॉल्व नहीं होगा जब तक सब नहीं बोलेंगे। सर ने क्लास ही डिस्कनेक्ट कर दी हुई है। एक मिनट जरा मैं देखता हूँ ये क्या मसला आ रहा है आज नेट का ना। हालांकि मैंने इसको 3-4 मरतबा ट्राई भी किया है बच्चों। आप सर अगर आप मसला आ रहा है बताओ। हेलो, ये नेट का सारों के साथ मसला आ रहा है, जरा आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, सबके साथ आ रहा है। एक मिनट जरा मैं इसका कोई सोल्यूशन लेता हूँ। यार फ्रेंड्स बोला तो करो यार, सब मुंह बंद करके क्यों बैठ जाते हो? अच्छा, जो चारों का नुकसान हो रहा है ना, उन्होंने भी फीस ली हुई है। अच्छा, जो पेपर आपने जो उस दिन देख के आएंगे, कभी आपका फर्स्ट पेपर होता है, कभी आपका सेकंड पेपर होता है, तो आपको कुछ भी नहीं याद होगा। फर्स्ट पेपर भी होगा तो आपकी नींद नहीं पूरी हुई होगी, सेकंड पेपर में आप जो है वैसे थके होंगे, कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। तो उस वजह से आपने इस तरह बुलेट नोट्स बनाने हैं ताकि इसमें वो चीजें लिखनी है जो आपको याद रह जाए, ठीक है। मतलब हेडिंग हो, मेनली हेडिंग्स हो, ठीक है, जो कीवर्ड्स हो, ताकि आप जब उसको क्विकली रिवाइज कर सके। आपके पास लाइक हाउ मच टाइम यू विल हैव टू रिवीजन, एटलीस्ट लाइक मैक्सिमम यू हैव 1 आवर, नॉट मोर देन दैट। आप देखते हैं 2 आवर्स की ब्रेक होती है, उसमें कुछ खाना होता है, ठीक है। आपको बाहर आते आते टाइम लग जाता है, फिर आपके पास जो एक हमारी जो इंट्रिंसिक एबिलिटीज हैं, जो हमारी टेंडेंसीज हैं कि हमने चेक करना है पेपर में, पिछले एमसीक्यूज चेक करने में टाइम लग जाता है। तो आप देखेंगे कि आधा घंटा 40 मिनट निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ खाएं पिएंगे और जाते हुए भी 15 मिनट से पहले हमने जाना होता है। सो यू विल हैव 1 आवर। सो 1 आवर में सिर्फ ये नोट्स आपसे रिवाइज हो जाएंगे 2-3 दफा इजीली, ठीक है। पूरे नोट्स रिवाइज नहीं होंगे। तो जो भी सब्जेक्ट के आपने नोट्स बनाने हैं वो इस तरह बनाने हैं। अच्छा, वापस चलते हैं अब अपनी क्लास इस पे टॉपिक पे। सो क्लासिकल थ्योरी आपने देख ली, ठीक है। इसका कौन था जो प्रोपोनेंट था? ही वाज an essay on crimes and punishment. So you should know what is the name of the book as well. अब इस presumed innocent, that offenses and punishment must be defined in a written code of law and that the guilty must be held accountable and punished for their wrongdoings. अब इसमें 4 चीजें बताई गई हैं that you can write in your notes as well कि ये किसकी चीजें हैं। ये जी बसेरिया ने बताई हैं। क्या बताई हैं? that offenders must be presumed innocent, ठीक है, first, that offenses and punishment must be defined in a written, be held accountable। पहले आप उसको assume करेंगे that is at innocent, ठीक है। you will give him full chance to defend himself, ठीक है, to present evidence or whatever in order to acquit himself। लेकिन अगर वो फेल होता है then you should have the written code, like code of law। Why it is important like to define that what is a crime against according to the legalistic definition and what is not, and then you should have a strong mechanism to impose the penalties on him, ठीक है। so ये चीज जो थी ये सिर्फ बसेरिया ने बताई थी। It was based on the belief that people have free will। so ये free will जो 3 postulates बताए गए थे, then you can also discuss that another the same postulate under Cesare Basiria heading as well if you need to write that। And then the theory presumes that individuals have equal rights and coexist in a society held together by common goals and beliefs। that is not दोबारा फ्री विल के बेस पे वो क्या करते हैं? they commit crime। In classical theory, human behavior, including criminal behavior, is motivated by a hedonistic rationality। hedonistic क्या होती है? प्लेयर सीकिंग रेशनैलिटी, ठीक है। कि अब इसमें डिफरेंट जो है पॉजिटिविस्ट ने साइंटिफिक अप्रोच से इसको बताया गया कि कौन कौन से उनके प्लेयर सीकिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है, जो उनसे मिस हो गई थी उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स की वजह से या सोशल स्ट्रेन्स की वजह से या लेबलिंग की वजह से, जो भी है वो कौन सी मिस हो गई थी जिसकी वजह से जाएंगे, वो आ जाता है आपका पॉजिटिविस्ट, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच आ जाती है। इसमें कोई साइंटिफिक नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, नहीं सॉरी सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें साइंटिफिक फिगर्स आती हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स आते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस आते हैं,
और सब्जेक्टिव होती है जो बेस्ड ऑन योर इम्पल्सेस, ऑन योर फीलिंग्स, ठीक है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, देयर इज नो साइंटिफिक फिगर्स, बट ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव इन नेचर. सो दीज थ्योरीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर, क्लासिकल थ्योरीज. अच्छा, ये आप क्लासिकल थॉट, इसको आ जाते हैं न्यू क्लासिकल इन थ्योरीज में आ जाती हैं. एट द स्टार्ट ऑफ 20th century, William Graham Sumner described three basic forms of behavioral structure in its members: modes, folkways, and laws. Relations of group values, ठीक है, ये न्यू क्लासिकल वालों ने. तो forms of behavioral structure imposed by social groups upon its members, यानी ये चीज अगर इसके that can be a crime. Folkways क्या होती हैं, जो customs है आपकी, whose violation is less likely to threaten people's survival, and then the laws codified into formal structures for enforcement purposes. The new classical one, इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके आते हैं पॉजिटिविस्ट के, जितने भी अभी क्वेश्चन देखेंगे पॉजिटिविस्ट के थे. सो व्हाट इज द हेरिटेज ऑफ द क्लासिकल स्कूल, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस क्या थी या सिग्निफिकेंस क्या थी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड. सो देयर आर 5 प्रिंसिपल फंडामेंटल टू. ठीक है, करने साथ लगा नहीं वैसे ये ऊपर नहीं वैसे ये ऊपर हां इसको लगा लो ताकि आवाज कम. So what is the heritage or inheritance of the classical school to the contemporary world? So there are 5 things: rationality, hedonism, punishment, human rights, and due process. ठीक है, मतलब rationality क्या होता है कि that can be the rational choice of the person. The pain, so what will happen? The crime can be reduced. ये जो चीजें आजकल हम यूज कर रहे हैं, ये कहाँ से आई हैं? इनका जो ओरिजिन था वो क्लासिकल थॉट से है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से है. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये उसी के अंदर आ रहा है. मतलब अगर आपके पास क्लासिकल स्कूल आता है, so you can just write the heading and the conclusion before the conclusion that what is the heritage of classical or importance of classical school of thought in the contemporary world. ठीक है, उसके अंदर ये चीजें आ रही हैं. So again these are the major principles of the classical school. जो main आपको पहले 3 postulates बताए हैं. So it is again the same thing. Humans are fundamentally rational, यानी ये जो आपको चीजें बताई है ना, rationality, hedonism, punishment, so it is also the same thing. Humans are fundamentally rational. Most human behavior results from free will and rational choice. Pain and pleasure are the 2 central determinants of the human behavior. Punishment deters law violators and to serve as an example to the others. And root principles of right and wrong are inherent in the nature of things. So this is again the same thing going on. So then we have Cesare Basseria. उसके आपने देख लिए थे ना कि ऐसे on crimes and punishment में है. अच्छा, उसमें ये एक उसकी जो है वो quotation कह सकते हैं कि laws are the conditions under which independent and isolated men unite to form a society. ठीक है, so उसने जो था वो यही बताया था ना कि codified laws होने चाहिए. तो ये उसकी जो है, ये उसकी कोट आ सकती है. So यही कोर्स जो है वो हमने यूज करनी होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता. So what is the purpose of punishment according to Cesare Basseria? ये जो हमने क्लासिकल डिटर करना होता है कि हाँ, कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को वायलेट करोगे तो उसकी ये पनिशमेंट है. ठीक है, जितनी ज्यादा ये पनिशमेंट होगी उतनी ज्यादा डेटरेंस होगी. रेट्रीब्यूशन ये है कि किसी ने क्राइम कमिट कर लिया है, देन यू विल गो फॉर द जी एग्जैक्टली. ठीक है, फिर उसके बाद देयरफॉर पनिशमेंट शुड बी इम्पोज्ड टू प्रिवेंट ऑफेंडर्स फ्रॉम कमिटिंग एडिशनल क्राइम्स. ठीक है, मतलब ये ना हो कि उसका मेन पर्पस क्या है कि आपने बाद में उसको रोकना है.
एग्जांपल सेट करनी है उसको, ये नहीं कि आई फॉर द आई और ये करके उसको जो है वो रेट्रीब्यूट कर दें। वी नीड टू एक्चुअली रिड्यूस द क्राइम इन द सोसाइटी एंड दैट इज पॉसिबल इफ वी इंक्रीज द डेटरेंस एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर सिसिलियस बेसिलिया। अच्छा ये सारा कुछ वही है। अब जेरेमी बेंथम था, एक और है बेंथम, आई थिंक 1748, ये इसका स्टूडेंट था। हाँ जी, उसी का स्टूडेंट था ये जेरेमी बेंथम, सिसिलियस बेसिलिया का। So Bentham's claim rests upon the belief spawned by the Enlightenment that human beings are fundamentally rational. Again, these are the same thing. And but इसमें इसके two postulates हैं. Criminals will weigh in their minds with the pain of punishment against any pleasures. वही चीज है, लेकिन अब philosophy change हो गया ना, ठीक है? बेंथम ने सर हमारा पैन मॉडल और ये और जितने भी हमारे पनिशमेंट्स के और जेल का सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में भी कॉमनवेल्थ का जो हिस्सा है वो रिसेंटली बना है। गुड एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसमें चार्जर उसने प्लग इन रिजल्ट्स में ज्यादा था, चार्जर वो लेके नहीं आया था। तो दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया, हाउ एंड व्हाई? और आपका क्लास टाइम कब तक है आज का? आज हमारी स्टार्ट लेट हुई है ना, 6:45 पे स्टार्ट हुई। तो जब तक आप आ जाए मैं तो आ गया था, बस थोड़ा लेट हो गया था, 20 मिनट्स लेट था मैं बस। लेकिन यहाँ पे आई थिंक प्रोजेक्टर का इशू, यार दोबारा इशू आ गया ये, मेरा तो नेट स्विच है। Let me note time. जी इतनी बातें क्यों हो रही हैं आप लोगों की? कितने ऐसा से आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे पहुंची है तैयारी? ऐसे लिखना आ गया आप सबको? ऐसे ऐसे पास होना काफी है। 40 नंबर इज गुड। मेरे 42 थे। सर अभी रिसेंट जो लेडी की पोजीशन है 44 हो सकता है सर। नहीं महीन की 40 है उसकी। 44 अच्छा, सो वी वर टॉकिंग अबाउट जेरेमी बेंथम। पता नहीं ये किधर आते हैं जी, वो चार्जर लेके तो गया था, वो लेके आया था चार्जर, उसने इधर नहीं रखा था चार्जर ला के। हाँ उसको मैंने चार्जर अपना दिया, उसने लगाया नहीं। तो बातें करने की जगह मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने ताकि आपका टाइम यूटिलाइज हो सही तरह, बातें ना करें तब तक चार्जर आ जाता है क्योंकि इसने बंद हो जाना है। आज के दिन मैंने जो है वो थ्योरीज कवर करवानी थी आपको, साइकोलॉजिकल थ्योरी तक, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल इजी है लेकिन आती है ना बायोलॉजिकल थ्योरीज, उसके बाद साइकोलॉजिकल और सोशल थ्योरी में लेम्ब्रोसो है और एनरिको फेरी है और एक और है लिखा हुआ मैंने बता दूंगा। इसमें मेन पॉजिटिव थ्योरीज है ना जो हमने करनी है, और क्लासिकल थ्योरीज जो हो गई हैं यही है क्लासिकल और पॉजिटिव थ्योरीज हैं जिसमें आपके पास
जाती है, लर्निंग थ्योरी आ जाती है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, एसोसिएशन थ्योरी आ जाती है और सब कल्चर थ्योरी आ जाती है। ये चीजें आती हैं। गुड, लाइट ऑन कर देंगे। क्या कह रहे थे? तो यार वो उसको मैंने दिया था चार्जर, मुझे लगा था इधर ही होगा, चार्ज इसी पर्पस के लिए दिया था। एक मिनट मैं देख के आता हूँ। इसमें लग जाएगा यार। उल्टा नहीं यार, इस तरह क्या माँ भाई मारी। जी क्या पूछ रहे थे आप क्वेश्चन? आई थिंक इन अक्टूबर। तो कहते हैं मेरा पीएस शुरू में, अभी तो पोस्टिंग होती ना। आई थिंक इट विल टेक 2 years। सैलरी कितनी होगी? 50? 50? ठीक है, वो तो पार्टीज में खत्म हो जाती है हमारी। 6 months is your CTP and 1 year is your STP. STP स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपके ग्रुप की होती है, और CTP 6 month होती है जो सबके साथ करनी होती है। मेडिकल में अच्छा, मेडिकल में अभी मेडिकल की आपको क्या टेंशन है? कुछ भी नहीं, आपकी रिपोर्ट्स टेस्ट चेक होती हैं, ठीक है। आपके जो उसमें ये चेक करते हैं कि किसी को हेपेटाइटिस या एड्स नहीं है, ये मेन 2 चीजें हैं। इसके अलावा जिसका ओवरवेट होता है उसको टाइम देते रहते हैं, ठीक है, कि आप जो है अंडरवेट शुरू में ही होता है, ये बाद में नहीं होता। वो अंडरवेट वाले को कुछ नहीं कहते, ओवरवेट का मसला। वो आपका जो है वो BMI क्या होती है? बॉडी मास जो रेशियो है, वो आपका जो है वो एवरेज होना चाहिए, मतलब जो सजेस्टेड होता है वो होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। आप पहले रिटन की तैयारी करें, वो बाद की चीजें हैं, ठीक है। रिटन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं CTP कब स्टार्ट हो रही है, STP कब होनी है, वो सेकेंडरी थिंग है, ठीक है। वो मुझे भी नहीं पता थी, वो आपको बाद में इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। अभी आप रिटन पे फोकस करें, ठीक है। ये मेन आपको है ना, आप नहीं जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। दैट इज अ गुड मेन थिंग टू आस्क। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछें। अभी तक चल रहा है हमारा सीन चार्जिंग वाला। मेरी हाँ, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। जुलाई 2017 में जो एवेल्यूएशन इधर नहीं आते, रमजान साहब आते हैं, हमजा आता है, मैं आता हूँ, सर हैं, उससे करवा लो, ठीक है। ऐसे करवा लें आप, जिससे मतलब ऐसे में ना आपके डिफरेंट जो हैं वो टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब जितने ज्यादा लोगों के पास जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको जो है वो मसाइल से दरपेश होंगे। इसकी बजाय आप वही टाइम स्पेंड किया करें लिखने पे, ठीक है। आप टाइम लगाया करें कि 20 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स हैं, नीड टू राइट इंट्रोडक्शन एज वेल एज एन आउटलाइन ऑन योर ओन। यू डोंट नीड टू टेक द गाइडलाइंस फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट उधर अवेलेबल नहीं होगा। नो मैटर हाउ गुड यू राइट इन एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, but you need to write in 3 hours. That is what matters.
सो इसकी प्रैक्टिस किया करें, डेली प्रैक्टिस करें. सो दैट इज व्हाट आई डिड एंड दैट इज आई जस्ट रिकमेंड एवरीवन टू डू. बाकी जो ऑप्शनल्स हैं वो उसके नोट्स होने चाहिए, बुलेट नोट्स, क्योंकि आपको अभी क्रिमिनोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. व्हेन वी फिनिश द क्रिमिनोलॉजी, सो जिसके नोट्स होंगे दे कैन इजीली रिवाइज इट, जिसके नोट्स नहीं होंगे दे नीड टू गो थ्रू इट अगेन, ठीक है. बिकॉज इट इज ह्यूमन नेचर के यू कैन जस्ट memorize or cram anything that you have crammed and you can retain it for only 2 weeks maximum, ठीक है. इसके ज्यादा नहीं कर सकते and you don't have the time कि आप उसको continuously repeat करते रहें. So the only thing that is suitable and feasible is your making notes, one bullet notes, that's it. इसके अलावा और कुछ? हाँ, स्टार्ट में बुलेट नोट्स बनाएं, लेकिन ऐसे टाइम है तो आपके पास बना लें. आई थिंक यू डोंट हैव इनफ टाइम. कहाँ पे टाइम है? स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी पूरे स्टार्ट किए ना, ठीक है, तो वो क्या करें? तो हमारी क्लास नंबर से चल रही है आपकी क्लास, तो आपके लिए रिकमेंडेशन क्रिमिनोलॉजी के रिलेटेड. देखिए, एक चीज इसमें ये होती है कि इसमें ना रिटर्न में आप लोगों ने लिखना है, ठीक है. लिखेंगे तब जब आपको याद होगा. आप दो चीजें होती हैं, हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास रिटेंशन नहीं होती उसकी, या आप याद कर लें अच्छी, जो जिस तरह आपको फैक्ट्स बताए ना, केस स्टडीज आपको याद होनी चाहिए, आपको कोटेशन याद होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, ठीक है. इसकी डायरीज बना लें, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इसको चीजें सेपरेट कर लें, ये चीज याद करें, ठीक है. अब आप जो एक्सेल में प्रैक्टिस करते हैं ना, राइटिंग प्रैक्टिस, वो इसमें भी वही चल जाएगी, ठीक है. इसमें आपको स्टेप्स वगैरह याद होंगे तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और वो लगेगा कि आपने क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव में उसको तैयार किया. अगर आप डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं, जिस तरह सीगल की बुक है, बहुत लेंथी बुक है, 700-800 पेजेस की बुक है, ठीक है. आपको थ्योरीज की कोई समझ नहीं आ रही, किसी की एक मतलब किसी एक टॉपिक की या किसी एक ऐसी चीज की समझ नहीं आ रही, तो आप पहले खुद डिस्कस करें ना आपस में, ठीक है, जिसको आइडिया है, वो एक अच्छी चीज है. उसके बाद आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद अगर नहीं समझ आ रही है, किसी को बहुत ज्यादा शौक है, तो थ्योरीज पढ़ ले, लेकिन उससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा आपका. वही टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं क्वालिटी नोट्स में, मतलब आप बुलेट नोट्स बना लें. लेंथी नोट्स भी बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो इररिलेवेंट चीजें हैं ना, वो वैसे ही जब आप रिवाइज करते हैं वो स्किप हो जाती है, ठीक है. तो आप उसको बेसिक यही है कि बुलेट नोट्स बनाएं, क्योंकि अभी आगे जब आपने टेस्ट सेक्शन देनी है, ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं होता. आपने क्रिमिनोलॉजी को खत्म करने दिन में 3 घंटे या 4 सर आवाज नहीं आ रही आपकी. सर नहीं है मौजूद.
ये ऑन इसको लगाने की जरूरत नहीं जी we are back जी so we are back what we were discussing German Bentham okay so in German Bentham it is again the same thing as your same scenario so we have Acha, then we talk about social important terms. I think I have already explained it to you. So now this is important terms: special deterrence and general deterrence. Special deterrence is the prevention of individual from crime again by punishing them. Okay? The criminal don't. They have committed crime, so that is called your special deterrence. General deterrence is for the whole of the prevention of people in general society at large from engaging in crime by punishing specific individuals and making them सर आवाज exactly. So that is called a general deterrence. Like you are आप हमारी बात सुन रहे हैं सर? हमें बिल्कुल आवाज this नहीं आ person रही। is या फिर सर डबल आवाज आ रही है। उसको सजा दी गई है and then this is the punishment of the specific person. Yes. समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। So this is called your special general deterrence. Hedonistic calculus. Hedonistic calculus by pain और pleasure. So pleasure ज़्यादा है तो commit crime होगा, pain ज़्यादा है तो crime commit नहीं होगा. Utilitarianism is hedonistic culture. Then we have neoclassical criminology. So in neoclassical criminology we have positivism, hard determinism. So what is positivism? It is the application of scientific techniques to the study of crime and criminals. What is hard determinism? It is the belief that crime results from forces beyond the control of the individual. इसको आप छोड़ दें. Now we go to the neoclassical theory. So it is the modification of the classical theory in which it was considered that certain factors such as insanity might inhibit the exercise of free will. It is also introduced the idea of mediation as a measure of the degree of free will and mitigating कौन सी नहीं देते? as legitimate grounds for diminished responsibility. So अब ये इसमें example देखें. If a person is attracted to crime and chooses to violate the law, modern neoclassical theorists argue that he deserves to be punished because the consequences of crime were known to the offender before the crime was committed. So it is more or less the same thing. Notions of revenge and retributions are morally based. They build on a sense of indignation at criminal behavior and on the sense of righteousness inherent in judicial-Christian notions of morality and अब इसमें था क्या? अब ये जो न्यू क्लासिकल थॉट है ना, इसकी जो मेन थ्योरी है वो है रैशनल चॉइस थ्योरी, जो जिसका नाम दिया गया। न्यू क्लासिकल थॉट में क्या है? न्यू क्लासिकल थॉट में ये है कि फ्री विल भी है, ठीक है, पेन और प्लेजर भी वो उसको वेट कर रहा है, और इसके अलावा जो उसके जो सराउंडिंग एक्टर्स हैं they are also playing a role in determining that he will commit a crime or he will not commit a crime. For example, it is, you can say, the amalgamation of the positivist, like some perspective of positivist school and new classical school. अब उसमें जो इसकी मेन थ्योरी है न्यू क्लासिकल थ्योरीज के अंदर वो है रेशनल चॉइस थ्योरी। एक माइक को ऑफ कर लें। का मतलब क्या है? पर्सपेक्टिव दैट होल्ड्स दैट क्रिमिनलिटी इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस चॉइस एंड दैट प्रिडिक्ट्स सर दैट कुछ इंडिविजुअल हमारी आवाज ही नहीं आ रही। सर सुन ही नहीं रहे हमें। So, for example, routine activities theory, a brand of rational choice theory suggests that lifestyles contribute significantly to both the volume and the type of crime found in every society. For example, जो एक क्राइम है, मतलब एक मर्डर है या एक थेफ्ट है, वो अगर उसकी जो कैपिटल है जो उसकी चोरी किया है, अगर उसका कम है, so it means that कि उसकी जो आउटरीच है क्राइम क्रिमिनल की वो कम है। फॉर एग्जांपल, अगर वो डायमंड या जो नेकलेस है या जो गोल्ड अगर वो उसको चोरी करता है, तो इट मींस दैट उसकी जो इंटेंशंस हैं, जो उसकी जो एबिलिटीज थी, मतलब जो उसकी सोसाइटी थी, ठीक है, जो उसकी एम्बिशंस थी वो ज्यादा थी। ठीक है, तो ये आ जाता है रूटीन एक्टिविटीज थ्योरी में। सिचुएशनल चॉइस थ्योरी क्या है? आपको सिचुएशन जैसे पहले बताया उसको मिल गई है तो उसने क्राइम कमिट कर लिया। अब ये जो चीजें थी ना, पनिशमेंट, न्यू क्लासिकल थॉट, आई हैव ओनली इंक्लूडेड दिस के सेफ एंड पे, अगर वो कभी ये चीजें आ जाए न्यू क्लासिकल की, वैसे कभी उसने पूछी नहीं है। जो मेन चीजें हैं वो अब यहाँ से स्टार्ट होंगी। सबसे पहले सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं। अब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी सोशल थ्योरी के अंदर ही आती है, तो इस सेपरेट इसको कंसीडर किया जा सकता है। अभी किसने थे? क्लिफर्ड शो एंड हेनरी मैक्के, दो बंदे थे। इसको कहते हैं शिकागो स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शिकागो के रहने वाले थे, इसको शिकागो स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। अब इसमें ये क्या बताते हैं जी? इसमें मेरे ख्याल से क्लिप आर्ट भी है, ये क्लिप आर्ट है इसका, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।
So first we have conceptual model of neighborhood social disorganization or adolescent problem behavior. So this is nowadays. So first of all, we see what is disorganized neighborhood. So disorganized, what do you mean by disorganized? कि वो organized नहीं है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है? कि these are the structural variables. For example, there is poverty. There is single parent household, मतलब उसको parenting control नहीं पूरा दिया जा रहा है, parenting उसको नहीं मिल रही है पूरी. Racial and ethnic heterogeneity. Racial and ethnic heterogeneity का क्या मतलब है? कि वहाँ पे different races हैं, different ethnicities हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो है वो rift होते हैं प्रोड्यूस. तो इसकी वजह से क्या होगा? कोई ग्रुप में तो मैसेज भी नहीं पढ़ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा. Any society, it has the components of being a disorganized society. What will be the result of this? The result of this will be weak pro-social network, institutional resources, and social support. For example, if you see that in your community there is garbage outside, littering outside, so there is less weak social network, ठीक है, institutional resources नहीं है, तो क्या होगा कि वो जो वहाँ पे litter है या जो भी garbage है वो वहाँ पे ही रहेगा, ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा? People will become disinterested in the society and society will become disorganized. जो उसके अच्छे लोग होंगे वहाँ से मूव आउट कर जाएंगे, ठीक है. ठीक एग्जांपल दे दें, जो आपके सराउंडिंग में कुछ सम एरियाज हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अच्छे थे और वो अच्छे नहीं रहे. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. वहाँ पे जो क्राइम था, वहाँ पे पॉवर्टी आ गई, वहाँ पे रेशियल और एथनिसिटीज आ गई डिफरेंट, और वहाँ पे रेजिडेंशियल मोबिलिटी, मतलब वहाँ पे जो लोग थे अच्छे एरियाज में मूव कर गए बिकॉज ऑफ द गुड फैसिलिटीज अवेलेबल एट द एरियाज, और जो उधर लोग रहने वाले थे उनके पास कुछ कम रिसोर्सेज आ गए, ठीक है. तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे. इसकी एक और क्लिप पार्ट बड़े मजे की थी, वो मुझे नहीं मिली, लेकिन अगर वो मुझे मिलेगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बता दूंगा. आपका माइक बंद है, खुला है, चल रहा है. एक आप पूरा बंद कर देना. ठीक हो गया. Social control. What are the informal social controls? So first we need to discuss what are the formal social controls and what are the informal. Can anyone tell me what is the formal or what are the formal social controls? Formally, कौन से ऐसे जो social control है? Policing, ठीक है, that is a formal social control. मतलब आपने सोसाइटी को कंट्रोल करना है formally, legally. So that is you have the institution that is called your police, ठीक है. What are the informal social control variables? For family, you have school, ठीक है. So these are the things or the actors that are the components of your weak informal social control. Your friendship, your friends, your social network, your neighbors, ठीक है. So they all constitute informal. मतलब उनके पास formally they don't have the powers to impose, but they, लेकिन वो क्या कहते हैं? They try to change your behavior. They try to influence upon you because of your relationship with them, because you are associated with them. Okay. आपके सोशल ग्रुप्स बनते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको अगर अलग कर ले तो सारी लीक्स होंगे. लेट्स सपोज इस तरह फॉर्मल कल्चर आपने बात. हाँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. अब देखें फॉर्मल में कौन से आ जाते हैं? फॉर्मल ग्रुप्स की बात करें, फॉर्मल सोशल कंट्रोल्स की बात करें, जिसमें पुलिसिंग आती है, ठीक है. पुलिसिंग इज योर सोशल फॉर्मल कंट्रोल, फॉर्मल सोशल कंट्रोल. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आ जाएंगी ना, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सारा कुछ इसमें आ जाएगा. इनफॉर्मल में कौन सी चीजें आएंगी? ये इसका टॉपिक भी है सेक्शन 4 में. इनफॉर्मल में कौन सी चीजें आएंगी जी? आपका फैमिली नेटवर्क आ जाएगा. अब जब हम सोशल स्ट्रेंथ थ्योरी और सोशल कंट्रोल थ्योरी में पढ़ेंगे उसमें भी सारी चीजें आ जाएंगी दोबारा. अब फैमिली आ गई, फ्रेंड, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल. अब हमने देखना है कि कौन से हम ये इसको ये समझ रहे हैं क्या इसमें लिखा हुआ है कि वीक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, ठीक है. क्या होता है कि पॉवर्टी, इन सारी चीजों की वजह से इसके अंदर और भी पैरामीटर्स आ जाते हैं. इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आ गई, ठीक है. उसके अलावा पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पे आ गया, तो इसकी वजह से सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड बन जाती है. अब उसकी वजह से यहाँ पे प्री सोशल नेटवर्क होते हैं वीक, और वीक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल यूनिटी स्ट्रक्चर. मतलब आपके पास क्या बनती है? डेलिक्वेंसी के मेरे ख्याल से बारे में बात हो रही है ना, एडोलेसेंट पे, लेकिन आप क्राइम पे भी यही कर सकते हैं, ठीक है. यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ क्राइम, ठीक है. यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आपके पास वीक सोशल कंट्रोल है,
ठीक है। सोशल कंट्रोल थ्योरी में पढ़ेंगे कि आपके पास कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू विल गो एंड कमिट अ क्राइम। एंड देन इससे क्या होगा कि इसकी वजह से वीक बॉन्ड टू कन्वेंशनल सोसाइटी, association with the delinquent peers, or you can say criminal gangs, and at the end there will be high level of criminal activity in the area. So this is what we mean by social disorganization theory, और ये हेनरी शॉर्ट मैके ने दी थी। Chicago School of हाँ। Crime. अब इसके बाद social organization and crime. A social organization is a pattern of relationship between and among individuals and groups. I think I have already explained it to you. It is also defined as the formation of a stable structure of relation inside a group, which provides a base for the order and patterns relationship for new members. तो वहाँ पे new members आ रहे हैं in a society. If it is organized society, so there will be some social control, informal social control. So there will be a social networking as well. And due to that, the people will not commit the crime. Too much social control, ठीक है, people are well aware of each other problems, they are keeping an eye on the illegal activities in the society. So उस society के अंदर, उस organization, उस community के अंदर क्या होगा, crime कम होगा। लेकिन इस पर criticism भी होता है। criticism क्या होता है कि मॉडल टाउन आप देख लें या इन चीजों में देख लें, यहाँ पे robberies के cases काफी रहते हैं। Why? वो दूसरी theories आ जाती हैं उसमें। मॉडल टाउन की बात करें एज एन हमारा सैंपल आप करने रिसर्च के तौर पे चूंकि हमने किया, तो मॉडल टाउन के लोगों में क्राइम की डेलिक्वेंसी या क्राइम या किसी चीज को सिविल डिसोबीडियंस से कुछ भी कम था। बाहर से स्लम साइड से आए हुए लोग बहुत ज्यादा था, तो वही कमिट कर रहे थे वहां पे। अब इसमें एक और चीज आ जाएगी ना कि वो वहां पे कमिट कर रहे थे। अब वहां पे जो टारगेट होगा, मतलब वहां देखेंगे, ये तो कहा जाएगा ना कि वहां पे क्राइम रेट रहता है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज नहीं है, but there are actors available, there are some ये विक्टिमाइजेशन का मैं क्लियर होगी बात, opportunities available है वहां पे इजीली। वहां पे आप देख सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट का रोल कम है, ठीक है, कि वहां पे अब क्राइम हो रहा है मुसलसल, तो वहां पे आप उसको कंट्रोल करें, तो वहां पे कंट्रोलिंग कम होगी। अब ये इसकी वीकनेस आ जाती है ना सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की, व्हाई वी हैव क्राइम इन अ सोसाइटी दैट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सो दैट इज द क्रिटिसिज्म ऑन दिस थ्योरी। अब थ्योरी कोई भी परफेक्ट थ्योरी नहीं है, जो भी हमने सिचुएशन डील करनी है वो हम डिफरेंट थ्योरीज को यूटिलाइज करके करेंगे एट द सेम टाइम। एट वन टाइम वन थ्योरी विल जस्टिफाई इट, एट अनदर टाइम अदर थ्योरी विल जस्टिफाई इट। So social disorganization theory is the central element of the theory is that communities can be characterized along a dimension of organization at one end and are socially organized, and other they are socially disorganized. So socially organized community so they have solidarity, ठीक है, on important norms and values such as crime free community, cohesion, ठीक है, integration, which collectively help to lower the crime rate. So socially disorganized communities however lack these characteristics and have high crime rate. अब ये वही आप उसको मॉडल बना देते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लिप आर्ट इसमें आप शो कर देते हैं। सो इट्स ऑन यू, आप इसको जो है वो इस तरह बना दें, ठीक है, इस तरह बनाएं कि यहाँ पे लिखें कि जी there are less resources available for the people, ठीक है, so what will happen? People will migrate from the area, so people will become disinterested, ठीक है, there will be the availability of criminal opportunity available in the area, so criminal gang or criminals will nourish in the area or will क्या करेंगे, तो जाके आके रहने लग जाएंगे, ठीक है, or will lay stronghold in the area, and then the society will become disorganized. मतलब इस तरह फ्लो चार्ट बना लेना, ठीक है, कर लें इस तरह, तो जो आपको समझ आएगी वो आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है, और एट द एंड यू विल राइट दैट दिस कम्युनिटी इज सोशली डिसऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, ये आपका आगे है सर आपकी आवाज फिर दोबारा चली गई।
सर का माइक ही म्यूट हो गया है। चलिए मैसेज करती हूँ मैं ग्रुप में। ना सर हमें सुन रहे हैं ना ग्रुप में कोई मैसेज पढ़ रहे हैं। आप लोग रोजाना क्लास ऑनलाइन लेते हो? हो गया जी, ये जो है ना माइक म्यूट वाला काम खराब है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम करेक्ट करेगा। Okay, so we are finishing our lecture and I will share the slides with sir and sir will share with you। और ये बुक्स किसने लेनी है तो मेरे से ले लें। अच्छा, मैंने आपको वो बताना था ना, एक पेपर प्रेजेंटेशन बतानी थी मैंने आपको। अभी मैं दे देता हूँ जाकर सर को। अच्छा देखें, इसमें आगे नजर आ रहा है आप लोगों को? So you can write like this, write a note on the role of crime control agency। 4 ही क्वेश्चन है तो आई थिंक आप क्वेश्चन लिख सकते हैं उसमें, 10-12 क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। इनजस्टिस एनीवेयर इज द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। सो क्या था कि रोल ऑफ क्राइम कंट्रोल एजेंसीज। अब सबसे पहले आप उसमें क्राइम कंट्रोल एजेंसीज का बताएं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आ जाएगा, रोल क्या है उनके। उसी तरह यूरोपोल आ जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोल एंड फंक्शनैलिटी क्या है, यूएनओडीसी। सो इनका रोल मतलब क्राइम कंट्रोल में रोल बताना ना, क्या रोल है, काम क्या करते हैं। हाँ, तो ये आपका ये तो आएगा सेक्शन नंबर 4 का क्वेश्चन है। अब सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है उसमें। ये 2016 का आई थिंक पेपर है, हाँ जी उसी का ये। तो यहाँ पे देखें आप, एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन डिटेल। सो इसमें देखें एडवर्ड सदरलैंड की डेफिनेशन आ गई, क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना। अब इसमें देखें ना, यहाँ पे साइड पे लाइन लगी हुई है, तो अगर आप इसको अगर आप उसको यहाँ पे लिखते हैं ना इस तरह, ठीक है, तो आपके पास स्पेस नहीं होगी। so that will not be a good sign as well कि वो जी आप स्पेस भर रहे हैं। एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ तो नहीं है, ठीक है। तो आप उसको मार्कर से लिखें, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है तो मतलब यहाँ से स्पेस साइड से लिखें, तो इतनी ज्यादा सर वीडियो ऑन करके हमें भी दिखा दे। तो उसके स्टार्ट के एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। उसके अलावा उसने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना, उसने इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ना, पहली बात है आपकी। उसने आपकी देखनी है, आपकी प्रेजेंटेशन देखनी है, ठीक है। उसने मेन जो बोल्ड चीजें हमने की हैं वो देखनी है। उसने आपके क्वेश्चन की लेंथ देखनी है कि भाई 7-8 पेज का है, तो 4-5 पेज पे भी लिख के आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बट दैट इज ऑन लक, ठीक है। कि कई दफा मिलते हैं, कई दफा नहीं मिलते, कई लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जो सिक्योर ऑप्शन वो ये है कि 8 पेज मिनिमम होने चाहिए, और वो इजीली बन जाते हैं। देखिए ना आप, ये इसमें क्लिप आर्ट ऐड करते हैं, इस तरह की चीजें ऐड करते जाएं, ठीक है, कोटेशंस ऐड करते जाएं, तो आपकी चीजें जो है वो बन जाएंगी, ओके। तो ये मैं सर से भी शेयर कर दूंगा पेपर, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। इसके अलावा ये नोट्स हैं, किसी के थे, मेरे नहीं है, लेकिन ये जो है वो शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब सारा कुछ सेक्शन 1 के ना ये है। हाँ मैं सारा कुछ ये लिए तो दे के जाऊंगा। दूसरे वाले जिसने लेने हैं ना मेरे नोट, वो अभी स्कैन करो और मुझे वापस कर। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा ये सारे नहीं है, बाकी कुछ मैं बाकी बाद में ले आऊंगा। ये किसका कॉपी करवा दें या स्कैन कर लें वो कैम स्कैनर से। ठीक हो गया, चलें जी। अब किसने चेक करवाना काम तो आके करवा सकता है, मैं बाहर ऑफिस में। ये कौन लेगा आगे कॉपी करवाने के लिए? ये तो उधर जमा करवा देंगे, बाकी और कुछ नहीं है।
अच्छा, जिसने कुछ पूछना है वो आ जाए काइंडली ऑफिस में, क्योंकि मैं थक हूं यहाँ पे। ये चार्ज है मेरा।